आ रहे हैं, ठीक है ना, वो किस कैलिबर के हैं, राइट? एक बार ताली बजा। सुबह सुबह का सेशन में हमें ये नहीं समझ आ रहा कौन जा रहा है कौन सो रहा है, राइट? Rotarian Neeram Nimesh Agrawal comes from a very renowned and reputed family of Mathura known as the Ram Bhavan Parivar. His initial schooling from public school of Dehradun, from Sacred Heart School of Mathura till 10th standard, he always remained a school topper and a head boy. He did his 11th and 12th from Birla Higher Secondary School, Pilani, where he also proved himself as a school topper and remained captain. His brilliance is self-explanatory as he cleared the competitive exam of IIT in the first instance and got the admission in IIT Delhi for BTech Civil and cleared with merit. समझ में आया? After doing his BTech, his born brilliance did not stop there and he got admission in IIM Kolkata for MBA. On completion of his academic career, he returned back to his hometown Mathura and joined his family business, Builders and Developers, by the name of Techman Buildwell, which holds a very good reputation among the builders amongst Mathura and operates in Ghaziabad, Delhi, Faridabad and Mathura. His attachment to Sacred Heart School, where he did his schooling till 10th, was so much that he formed the Alumni Association of his old students and is the founder member of Sacred Heart Social Legal Clinic also. His Rotary journey starts in 2009. He became secretary in 2014-15 and president in 2018-19, and he became the assistant governor in 2020-21. During his tenure as president of the club in 2018 and in subsequent years, he did a lot of jobs, and now he has been elected as the district governor for 2024 and 25. फिर से तालियां। अब साहब ने बंद करा दिया है कि इससे आगे मत बोलो, इसलिए I would like to call upon him and start the session immediately for the motivation. Thank you, अमित सुनेजा जी। आपका दोस्त आपको इंट्रोडक्शन देता थोड़ा डर लगता है, पता नहीं कहाँ टांग खींच रहा होगा, सही में बोल रहे हैं। But thank you very much, thank you अमोसी। आप मेरा इंट्रोडक्शन इस बात से समझें कि मुझे फिलर की तरह यूज करें, बोले हमारे स्पीकर नहीं आया भाई, थोड़ी देर तू बोल रहे हैं। क्या एक सवाल आप सबों से, आप सब लोग रायला में क्यों आए? Sir, to gain new experiences And to develop my skills, communication skills and interactive skills, to have a sort of like fun in learning new things. कोई और? सुबह से चॉकलेट। कोई और क्यों आया रायला में आपको? Personality development and confidence gaining. तेरे केस में तो मुझे लगता है पापा ने क्यों बेटा चला था बहुत प्रेशर। Anybody else? Bobby? I was knowing that what is रायला, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम जब मथुरा में हुआ था मेरा भाई भी आया था, तो मेरे भाई ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, तो जिन चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम होती है जैसे डिसीजन मेकिंग अदर थिंग्स, तो आई जस्ट रेड द रोस्टर एंड आई डिसाइडेड टू कम। Thank you. The idea is आपने तीनों जवाब सुने, सबों ने सुने, और तीनों जवाब एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट थे। इसे हम कहेंगे all the three people जिन्होंने आंसर दिए हैं डिफरेंट मोटिवेशंस टू कम टू रायला, लेकिन एंड रिजल्ट क्या था? सब लोग रायला में आए। तो जो मोटिवेशन वर्ड है, दिस इज द की है। और मोटिवेशन कैसे होती है जिस पे बात करते हैं, क्यों हम कोई काम करते हैं? क्योंकि रायला में है, मेहनत तो करी होगी, जाड़े का टाइम हो रहा, घर में रजाई में सो रहे होते, मम्मी बढ़िया नाश्ता दे रही होती है, तो छुट्टी का भी दिन है, छुट्टी है ना सबों की?
The very fact कि आप लोग रात को 2 बजे तक जगे और उसके बाद फिर सुबह 7 बजे उठ के आपने योगा किया, shows there was a motivation in you to do something. वो जो कुछ भी था उसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मोटिवेशन के साथ एक दो चीज समझने की जरूरत है। कि लाइफ में कोई भी डिसीजन या काम करते हैं ना, इट्स गुड इफ यू अंडरस्टैंड हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग स्कूल टॉपर बनना चाहते हैं? अच्छा मैं कहूँ या स्कूल टॉपर बन लो या पानी पी लो, प्यास लग रही है, क्या करोगे? क्यों? क्योंकि पानी एक बेसिक नीड है। अगर मैं कहूँ सब कुछ कर लो या सांस ले लो, क्या कहोगे? तो ये सांस लेना, ये पानी पीना, ये खाना खाना, दीज आर दी बेसिक नीड्स, जिन्हें फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। दिस इज द मोस्ट बेसिक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन दैट वी हैव। इस मोटिवेशन में और जानवरों की मोटिवेशन में कोई अंतर है? हाँ, नाश्ते में कचौड़ी किसेगा? ठीक। इस मोटिवेशन में और जानवरों की मोटिवेशन में कोई अंतर है? क्योंकि जानवरों को भी ये चीज चाहिए, लेकिन इससे ऊपर भी हमको कोई चीज मोटिवेट करती है। घर में रहना पसंद है, सड़क की वजह, कपड़े पसंद है, सोचो बिना कपड़ों के घूम रहे होते हैं। कुछ केसेस में यहां से हमें और जानवरों में डिफरेंस होना शुरू हो जाता है। अब हमारी नीड्स बेसिक ह्यूमन नीड्स से ज्यादा, ह्यूमन कह लो बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड से ज्यादा होगी। दिस इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन। खाना खा लिया, पानी पी लिया, सांस ले लिया, बोले कपड़े भी अच्छे चाहिए। किसी के दिमाग में कोई भी सवाल आया तो पूछ लेना। मैं भी बड़ा 20 साल बाद इस काम को कर रहा हूँ ना, कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके ऊपर क्या नीड होगी बताओ? सर रहने के लिए घर। वो तो हो गया ना, घर और रुपए की बात कर ली हमने। मनी जो है ना, घर और कपड़े जैसी नीड में आ गई, ठीक है ना? एंटरटेनमेंट यस, और अच्छा टेकिंग बात पे आता है। कितने लोग नहाए सो गए ईमानदारी से? तो बहुत सारे नहाए। तो देख बेटा, टेकिंग बात की मोटिवेशन तो बहुत कम लोगों को है। चलिए कोई और मोटिवेशन? एजुकेशन? Sir, relatives. Sir, relatives. रिलेटिव, नॉलेज, फ्रेंड्स, इसको अगर कैटेगराइज करें तो हम कहाँ पहुंचते हैं कि हमारे खाने पीने की फिजियोलॉजिकल नीड होगी, हमारी सिक्योरिटी की नीड होगी। सिक्योरिटी इन द सेंस आपको रहने को घर मिल गया, कपड़े मिल गए, और सबसे बड़ी बात है फिजिकल इंजरी से आपको मुक्ति मिल गई। दैट इज द सेकंड स्टेज। तीसरी स्टेज आती है जो सोसाइटी की बात है, जैसे रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का। अब हमें बहुत बढ़िया खाना खाने को मिल जाए, बहुत अच्छा घर मिल जाए, और उन पे बात करने को कोई नहीं हो तो क्या होगा? बोरिंग होगा। और क्या होगा? डिप्रेशन हो सकता है। बताओ। डिप्रेशन एंड एंजाइटी, लोनलीनेस, उसी का रिजल्ट है डिप्रेशन। तुम्हारी तीसरी नीड है सोसाइटी नीड्स, नीड ऑफ इंटरेक्शन, नीड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद फेलो ह्यूमन बीइंग्स। और अब हम करीब करीब सारे जानवरों से ऊपर उठ के मैमल्स वाले स्टेज पे आ गए। चिंपैंजी और ओरांगुटान इन सबों के ग्रुप्स में, पता है आपको? ये लोग अपने अपने ग्रुप्स में चलते हैं। बट दिस इज व्हाट इज डिफरेंशिएटेड बिटवीन दीज एनिमल्स एंड दी अदर एनिमल्स। अब हमें ग्रुप की बात करने को लग गई कि हमें रहने को, साथ में खुशी बांटने को कोई आदमी है, दुख बांटने को भी कोई ना कोई साथी चाहिए। दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ मोटिवेशन। इसके ऊपर क्या है? फिजिकल नीड्स में आ गई, हेल्थ नीड्स तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, और एग्जाम प्रेशर, जॉब्स टेंशन वगैरह। और इसके अलावा और कोई मोटिवेशन नहीं है? बस दोस्तों के साथ रह लिया, उसके आगे कुछ नहीं। सर, एक्सपीरियंस
good life. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अच्छी जिंदगी को जीना अच्छी जिंदगी को डिफाइन कैसे करते हो? अच्छा खाना पीना रहना और सर एक्सप्लोर करना. अच्छा मैं एक सवाल पूछूं? सब क्लास में पढ़ रहे हैं? अच्छा बोलो. सर रिस्पेक्ट. Respect. अंडरस्टैंडिंग. Understanding is for human beings के साथ. सेल्फ रिस्पेक्ट. ये जो रिस्पेक्ट वाली चीज है ना, मुझे बताओ सब क्लास में पढ़ रहे हैं, बढ़िया खाने पीने को, दोस्ती अच्छी है, इच्छा क्या होती है? सोसाइटी मूव कर रहे हैं, इच्छा क्या होती है? रिकॉग्निशन की, रिस्पेक्ट की. अब यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल अलग हो गए, क्योंकि रिस्पेक्ट और दूसरा शब्द क्या बोला था? सेल्फ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट एंड बीइंग नोन इन अ ग्रुप. दैट इज वन मोटिवेशन जो हर ह्यूमन बीइंग को प्रपोज करती है फॉरवर्ड. कई सारे काम हम इसलिए करते हैं भाई, पास तो हो रहे हैं, पास तो 60% से भी होंगे, 70 से भी होंगे, 90 से भी होंगे, तो पास तो सब हो रहे हैं. पर एक इच्छा होती है ना क्लास में फर्स्ट आना है, होती है कि नहीं होती? और इसके अलावा और क्या होता है? अगर इन सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया, क्लास टॉपर भी हो गई, उसके अलावा कोई मोटिवेशन और दिमाग में आ रही है? As you have said, कि for our next generation, for our kids, we get motivated to do better and better for them. I'll say, like as our parents do, they get motivated from my parents' experience. I'll say they are motivated. They want to give me the best life, so they are motivated to that thing that they want to give the best to their child. So after getting a partner, after getting settled, everything you do for your kids, like for your child. किड्स के अलावा देखो, किड्स के साथ तो एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है. Identifying what makes you happy and keep working on it, and to be happy is a way. That becomes your own needs, social needs rather आपकी security needs में आ जाएगी, और respect वाली नीड में आ जाएगी, excel in your field. इसके आगे क्या है? To be accepted in the society and fame drives. Again society needs. Fame drives. अच्छा महात्मा गांधी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? Respect in the society again वो सब उसी में आ गया ना, अपने ग्रुप में सबसे आगे आप get respect. महात्मा गांधी में क्या चीज थी जो इन सबसे अलग थी, इन चारों मोटिवेशन से? और ऐसी नीड होगा कई लोगों में हम डिस्कस करेंगे क्या है. पेशेंस उनका एक कैरेक्टरिस्टिक था. नीड में चलो ऐसे टाइम कम है, खत्म करते हैं. उनके काम करने का तरीका हिंसावादी था. वो यूनिटी में ला सकते थे सबको, उनके पास ऐसी पावर थी सबको यूनिटी में ला सकते थे. चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की. महात्मा गांधी भूखहड़ताल पे चले जाते थे, कई लोग जाते हैं, और कई दिनों तक भूखे रहते थे. कपड़ों के नाम पे उनके पास एक लंगोट होती थी बस. तो अपनी बेसिक नीड्स तक से वो आदमी कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, अपनी सिक्योरिटी नीड्स से कॉम्प्रोमाइज कर रहा था. सामने घोड़े पे अंग्रेज आ रहे हैं और आप बैठे हुए हो, आपको डर तो लगना चाहिए. लेकिन उस डर को ऊपर करने के बाद he was trying to do something जिसमें उसका अपना शायद कुछ नहीं था. So when you are talking about working for society without your own benefit, that is something we known as self-actualization. आप अपने potential के highest level पे काम करते हो without thinking about yourself. ये जो selflessness है जो humans में होती है, आप लोगों ने भी कई बार देखी होगी. आपको भूख लग रही हो, पास में कोई भूखा है तो आप उसे कहते थे थोड़ा सा तू भी खा ले. करते कि नहीं करते? कोविड में किया था कि नहीं किया था? This is the basic emotion जो humans को, is the basic motivation जो humans को और लोगों से अलग करती है. This urge of self actualization, this urge of working to the highest level of your potential, of doing things जिससे आपको खुद कोई पर्सनल फायदा ना भी हो रहा हो. होता कि नहीं होता? आप देश के लिए काम करना चाहते हो? देश क्या होता है? वो तो अपनी कॉलोनी भी होती है, उसके लिए कोई काम नहीं करना होता.
है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना देश कि हम उसके लिए काम करेंगे और उसके लिए हम जान भी देते कि सोल्जर है वो अपनी जान भी दे देता है। क्यों? The idea is to work for something which is higher than oneself. कि हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, तो अपनी मोटिवेशन को पहचानो। आप कोई काम क्यों करना चाह रहे हो, और अब काम करते करते अगर आपको ये लगे कि भाई इस काम में कोई बेसिक मोटिवेशन नहीं, बस आराम की बात है, दैट इज द टाइम यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ। 2 दिन बाद क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? एंड बी वेरी क्लियर कोई काम क्यों कर रहे हो। आइडेंटिफाई योर मोटिवेशन, व्हाट इज द सोर्स, और अगर सोर्स में जान नहीं लग रही तो थिंक ऑफ समथिंग एल्स। क्योंकि एक बात याद रखना, ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ करीब 60-70 साल की है। यू गाइस आर एट द जेनिथ ऑफ योर पोटेंशियल। आप जितनी मेहनत कर सकते हो, वापस आज जो 2 बजे तक जगे थे ना, हम मानते भाई ना हमें 8 बजे उठने में कितनी दिक्कत होती है, आप लोग योगा कर रहे होते। And we are supposed to be young. हम लोग भी 50 से नीचे के हैं। So identify your motivation, be sure as to what you want to do, और कोशिश ये करो कि सिक्योरिटी और फिजियोलॉजिकल नीड से ऊपर चढ़ के सोचें। लग्जरी किसी ने कहा, क्या है लग्जरी? 5 स्टार होटल में आज जाके सोएंगे, कल सुबह तक आते आते याद भी नहीं रहेगा, नाश्ता खराब हुआ तो सब मूड खराब हो जाएगा। So be very clear as to what motivates you. Question yourself, act accordingly. किसी को क्वेश्चन पूछना तो बता दो भैया।